Hello everyone, welcome to Power Electrics. Today we will discuss about Kirchhoff's law. Gustav Robert Kirchhoff developed two laws to compute or to calculate the simple circuits parameter like current or voltage by using this law. It is of two types. One is current law and another is voltage law. गौस्तव रॉबर्ट किर्चफ ने दो लॉ बनाए, डेवलप किए. एक है करंट लॉ और दूसरा है वोल्टेज लॉ. सिंपल सर्किट के पैरामीटर और जो एलिमेंट है रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, उसको कैलकुलेट करने के लिए, करंट और वोल्टेज को इजीली कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने दो लॉ बनाए, दो लॉ डेवलप किए. वन इज करंट लॉ एंड अनदर इज वोल्टेज लॉ. Current law is known as Kirchhoff's current law or KCL. Shortly we can say KCL. Voltage law is called Kirchhoff's voltage law or we can say KVL. Now, first we will discuss about KCL, then move to KVL. KCL, Kirchhoff's current law statement. It states that the algebraic sum of currents meeting at any point of node at any instant of time is zero. दैट मीन्स समेशन ऑफ आई इज जीरो. ये एक सर्किट है, ये एक नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. ये नेटवर्क में ये करंट का डायरेक्शन सब दिया है. मैंने कंसिडर किया है 5 करेंट्स, I1, I2, I3, I4 एंड I5. ये 5 ही करंट जिस नोड पे, नोड मतलब एक पॉइंट, जो पॉइंट पे दो रेजिस्टेंस, एटलीस्ट मिनिमम दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. तो यहाँ देखिए, यहाँ ये जो पॉइंट है, इसको कहा जाता है नोड. इस नोड पे जितना भी करंट जहाँ भी फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट में करंट जीरो होगा. केसीएल कह रहा है कि एट नोड द ऑल द करेंट्स मीटिंग एट एनी नोड एट एनी पॉइंट ऑफ नोड इज जीरो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. इट इज नॉट टाइम डिपेंडेंट, इट्स जीरो. दैट मीन्स summation of a current at a node is zero. Summation of current equal to zero. This is the basic formula. Now here the I1 plus I2 minus I3 minus I4 and minus I5 equal to zero. I have considered incoming current taken as positive and outgoing current taken as negative. That's why I1 and I2 are the incoming to the node and I3, I4 and I5 are the outgoing to the node, outgoing from the node. That's why these three currents I3, I4 and I5 are taken as negative and I1 and I2 are taken as positive. We can write I1 plus I2 equal to I3 plus I4 plus I5. नाउ I3, I4, I5 को मैंने राइट हैंड साइड को ले लिया, तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, I3 प्लस I4 प्लस I5. फ्रॉम दिस इक्वेशन we conclude that sum of incoming current equal to sum of outgoing current. In KCL we will get two things. One is summation of current equal to zero at any instant of time in a node, and another thing is sum of incoming current equal to sum of outgoing current. Next, KCL follows the law of conservation of charge. Kirchhoff's current law follows the law of conservation of charge. Why it is said that it follows the law of conservation of charge? Because there is no loss of charge. If you consider in a particular node, that means there is no loss of charge. Whatever the charges are incoming and that much of charge are outgoing. That means there is no loss of charge here. Only charge is transferred from one point to another point. That's why it is called as it follows the law of conservation of charge. Now प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ये सर्किट में तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R1, R2 and R3. This is 10 ampere current source. This is 5 ampere current source. Here
फाइंड I3 R3 में, इस R3 रेजिस्टेंस में I3 कितना करंट फ्लो हो रहा है फाइंड करो KCL यूज करके, बाय यूजिंग KCL। सॉल्यूशन, अप्लाई KCL एट नोड ए में मैंने KCL अप्लाई किया। दिस इज 10 एम्पियर करंट, दिस इज इनकमिंग टू द नोड, and 5 ampere current, this is also incoming to the node. Only I3 is the outgoing. Now I can write 10 minus I3 plus 5 equal to 0. That means 10 plus 5 equal to I3. So I3 equal to 15 ampere. We can directly say the incoming current equal to outgoing current. That means I3 is the outgoing current and both 10 ampere and 5 ampere are the incoming current. So I3 equal to 10 ampere plus 5 ampere, that means 15 ampere. This is the correct answer. Now discuss about Kirchhoff's voltage law. Statement, it states that the algebraic sum of voltages around any closed loop of a circuit is zero. Summation of B equal to 0. Kirchhoff's voltage law कह रहा है कि एक क्लोज लूप में जितना भी वोल्टेजेस है वो सब जीरो, इसका समेसन जीरो होगा, अल्जेब्रिक समेसन जीरो होगा। कैसे? समेसन ऑफ बी इक्वल टू जीरो कैसे हो रहा है अभी देखें। समेसन ऑफ वोल्टेज, दैट मीन्स एक सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स हो सकता है, दो वोल्टेज सोर्स हो सकता है, लेकिन वोल्टेज सोर्स तो कम होगा, लेकिन जो सर्किट एलिमेंट है उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। ज़्यादा नहीं, उसमें वोल्टेज ड्रॉप, बहुत सारे सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड है एक सर्किट में। देखो ये एक सर्किट मैंने कंसिडर किया है, इस सर्किट में एक ही वोल्टेज सोर्स है, इसको मैं EMF भी कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ से ये एक एक्टिव सोर्स है, यहाँ से डिलीवर होगा वोल्टेज। ये कि R1 है रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको नाम दिया गया है V1, V2, V3। V1 is the voltage drop across R1, V2 is the voltage drop across R2 and V3 is the voltage drop across R3. Now apply KVL in the above loop. इस लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो। Now B, this is voltage V, this is minus R1 plus minus IR1 plus minus IR2 plus minus IR3 equal to 0। देखो ये माइनस प्लस कैसे हो रहा है, ये कि साइन कन्वेंशन में है कि अगर माइनस प्लस ऐसे हैं, ऐसे साइन माइनस प्लस का साइन दिया गया है, अगर डायरेक्शन ऐसा है तो ये होगा राइज। अगर प्लस से माइनस अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एंटी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसको हम कहेंगे कि फॉल। दैट मीन्स ये होगा राइज इन वोल्टेज, ये होगा फॉल इन वोल्टेज। यहाँ देखिए ये करंट फ्लो हो रहा है प्लस से माइनस, इसको हम कहेंगे कि राइज इन वोल्टेज, और यहाँ माइनस से प्लस करंट फ्लो हो रहा है, माइनस से प्लस, तो इसको हम कहेंगे कि फॉल इन वोल्टेज। So according to the convention, this equation is created. Now V minus IR1 minus IR2 minus IR3 equal to 0. तो V equal to, अब ये जो माइनस नेगेटिव का साइन वाले जितना भी ये जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ। तो V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। सो V इक्वल टू टोटल वोल्टेज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस इज द इक्वेशन। फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन शोज दैट सम ऑफ EMFs इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। सम ऑफ EMF मतलब जितना भी एक्टिव सोर्स है, सम ऑफ एक्टिव वोल्टेज सोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ पैसिव सोर्सेस, सम ऑफ पैसिव वोल्टेज ड्रॉप, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पैसिव एलिमेंट्स।
दैट मीन्स जितना भी हम सोर्स लगाए हैं वो समेशन ऑफ सोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। देन केवीएल फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हियर जितना भी पोटेंशियल एनर्जी जितना भी है वो सम ऑफ जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है जितना डिलीवर होता है उतना कंज्यूम होता है। दैट मीन्स कुछ लॉस नहीं होता। तो इसलिए केवीएल फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ प्रॉब्लम, कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप V20 अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर। ये सर्किट में 50 वोल्ट सोर्स है, 5 ओम रेजिस्टेंस, 20 ओम रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन है। ये एक सीरीज सर्किट है, सिंगल लूप सर्किट। इसमें V20 कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर ये कितना होगा फाइंड करो। ये करंट I फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। नाउ अप्लाई केवीएल क्या है, समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू साइन ये होगा प्लस 50 वोल्ट, ये होगा माइनस, ये पैसिव एलिमेंट्स है तो इसका साइन चेंज होगा, फॉल इन वोल्टेज होगा वोल्टेज ड्रॉप। तो -5I माइनस 20I इक्वल टू 0। 50 इक्वल टू, मैंने शिफ्ट कर दिया 5 नेगेटिव साइन को राइट हैंड साइड, सो 50 इक्वल टू 5I प्लस 20I 25I। नाउ I इक्वल टू टोटल करंट इन द सर्किट इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 25, तो इक्वल टू 2 एम्पियर। यह 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। नाउ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर इज, वोल्टेज ड्रॉप मतलब V इक्वल टू I इंटू R। I फ्लो हो रहा है 20 एम्पियर, 2 एम्पियर, तो 2 इंटू R इज 20 ओम, 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 वोल्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। If you have any doubts regarding this lecture video, then give comment to the comment box. If you have not subscribed yet, then subscribe my channel and press the bell icon. Thank you for watching this video.